So students, today we are going to discuss chemical properties of carbon compounds. Okay, and we need to discuss only chemical properties of hydrocarbons because जो इससे next वाले थे जैसे अल्कोहल वगैरह वो तो syllabus से कट ही गए हैं. Okay, so that is not in your syllabus. So we are going to discuss chemical properties of hydrocarbon in detail. Okay, so properties of hydrocarbons में first property of the hydrocarbon is the combustion. कि when they are going to combust, what type of chemicals are they are going to produce. Okay, on complete combustion of the hydrocarbons in presence of oxygen will give carbon dioxide, water and energy. जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ऑन कंप्लीट कंबशन दे प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी. बट इफ यू डोंट गिव रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मान लो अगर आपके हाइड्रोकार्बन को 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए पर मॉलिक्यूल, बट आप उसको 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही दे रहे हो, 1 मॉलिक्यूल नहीं दे रहे हो. इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू द हाइड्रोकार्बन, देयर विल बी इनकम्प्लीट कंबशन. then you will observe incomplete combustion of the hydrocarbon. And during the incomplete combustion of hydrocarbon, it is going to give carbon monoxide instead of carbon dioxide, or either it can also give carbon instead of carbon dioxide due to incomplete combustion. For example, अब example में देखते हैं, methane for its complete combustion per molecule of methane require 2 molecules. Then the complete combustion is going to happen. Okay, clear? So on complete combustion, every hydrocarbon is going to give carbon dioxide, water and heat. कितने बनेंगे वो आपने नोट कर लेना है, वो बैलेंसिंग करनी है. ओके, वो बैलेंसिंग से पता लग जाएगा. क्लियर? बट बैलेंसिंग से हमें ये भी पता लग गया, मीथेन फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन रिक्वायर ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन. Next, ethane. Ethane for its complete combustion per molecule of ethane require 3 molecules of oxygen. Then the complete combustion is going to happen and there is production of 2 molecules of carbon dioxide and 2 molecules of water. Okay, और heat and light तो बनती ही है, आपको पता ही है. ठीक, जैसे LPG में क्या होता है, LPG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, LPG is made up of methane, ethane, propane, butane. ब्यूटेन मेनली होती है उसमें, मेनली ब्यूटेन कंसिस्ट करता है एलपीजी. ओके, तो ये सारे हाइड्रोकार्बन ही हैं. तो जब भी आपके एलपीजी जो रसोई में आप सिलेंडर यूज करते हो, जब उसको बर्न करते हैं एलपीजी को, व्हाट इज ये क्या देती है, ये देती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, जिसकी वजह से आपका फूड कुक होता है. ओके, क्लियर? तो इथेन फॉर इट्स कंप्लीट कंबशन रिक्वायर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड आफ्टर कंप्लीट कंबशन इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, heat, light. Okay, but if you are not going to give complete amount of oxygen which is required, for example, this is the example of ethene. To ethene you are not giving the sufficient amount of oxygen, you are giving the oxygen in 1:2, means for per molecule of ethene you are providing 2 molecule of oxygen. Okay, then the combustion will be incomplete. What is the meaning of incomplete combustion? Okay, if you mix ethane and oxygen in this ratio and then you are going to show combustion, then you will get carbon monoxide and water. Okay, clear? So here you can observe there is incomplete combustion, and during incomplete combustion you are getting carbon monoxide. Okay, and similarly if you provide ethene, यहाँ पे भी ethene ही है, but you are providing only 1 molecule of oxygen per molecule of ethene, now there will be also the incomplete combustion, but now in case of carbon, instead of carbon monoxide you are getting carbon. Okay, and water is a byproduct, carbon and water is a byproduct. Heat and light will also be there. Okay, जैसे आपने अपने ऑटोज वगैरह में देखा होगा, जो शहर में ऑटो चलते हैं, कई ऑटो बहुत पुराने होते हैं, तो उनका जो एग्जॉस्ट से धुआं आ रहा होता है वो ब्लैक होता है. वो ब्लैक क्यों होता है? बिकॉज इट कंटेन अनबर्न्ड कार्बन. ओके, सिमिलरली कई बार वो वाइट कलर का आ रहा होता है धुआं, वो क्या होता है, वो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ, क्योंकि पेट्रोल और डीजल में भी हाइड्रोकार्बन ही होते हैं. ठीक, तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जब होती है तो देयर इज प्रोडक्शन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, और ये स्मोक जैसी दिखती है.
ओके, वाइट वाइट कलर की। कार्बन डाइऑक्साइड आपको दिखती ही नहीं है, जैसे हमारे रूम में इस टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड है, हमें दिख तो रही नहीं, ठीक। तो इसलिए जब भी किसी ऑटो से मान लो व्हाइट कलर का धुआं बाहर आ रहा है, तो मान लो वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मेन कार्बन मोनोऑक्साइड है मेनली, ठीक है। और अगर ब्लैक कलर का धुआं आ रहा है, इट मीन्स जो उसका हाइड्रोकार्बन है वो और अच्छे से बर्न नहीं हो रहा, वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर बर्न हो रहा है, जिसकी वजह से कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, और कार्बन ब्लैक कलर का होता है। ओके, क्लियर? सो दैट्स इट। तो ये थे आपके पास कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोकार्बन which we are going to discuss, that is hydrocarbons such as methane, ethane, propane and many more are used as fuels. इनको as a fuel ही क्यों यूज किया जाता है? Because carbon and its compounds burn in air to produce a lot of heat energy. क्योंकि जब भी कार्बन एंड कंपाउंड्स को बर्न किया जाता है इन एयर, they are going to produce a lot of heat energy. Okay, so that's why we use hydrocarbon as a fuel. Okay, नाउ नेक्स्ट इज सैचुरेटेड। एक दो पॉइंट नोट करने वाले हैं बस, और आगे आपके पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली बर्न इन एयर विद अ ब्लू नॉन स्मोकी फ्लेम। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है एयर में से, तो इसलिए वो कंप्लीट कंबशन करवाते हैं। और जब भी कंप्लीट कंबशन होती है किसी हाइड्रोकार्बन की, उस टाइम आपको ब्लू कलर की लाइट दिखेगी, ब्लू कलर की फ्लेम दिखेगी, और वो स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं कर रही होगी, आपको स्मोकी नॉन स्मोकी फ्लेम दिखेगी। ओके, बट जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं बर्न विद द येलो एंड सूटी फ्लेम इन प्रेजेंस ऑफ एयर, उनको एयर से उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उसको चाहिए कंप्लीट कंबशन करवाने के लिए। तो जब कंप्लीट कंबशन नहीं होती किसी हाइड्रोकार्बन की, तो वो उस टाइम येलो फ्लेम के साथ बर्न होता है और साथ में स्मोक भी प्रोड्यूस करता है। ओके, जिसको हम सूटी फ्लेम बोलते हैं, येलो सूटी फ्लेम। ओके, क्लियर? बट ये येलो फ्लेम आने का रीजन क्या है? क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती ऑक्सीजन एयर से। अगर मान लो आप प्योर ऑक्सीजन सप्लाई कर दो अपनी मर्जी से, आपने किसी तरीके से इसको प्योर ऑक्सीजन सप्लाई कर दी, फिर ये येलो फ्लेम के साथ ही बर्न करेगा, क्योंकि फिर इसकी इनकम्प्लीट कंबशन नहीं ना होगी। ठीक, क्लियर? सिमिलरली अगर आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में बर्न करवाओगे तो क्या होगा? तो ये भी बर्न नहीं होगा, ये भी येलो फ्लेम के साथ बर्न होगा, ब्लू फ्लेम के साथ नहीं। ठीक है, बट अगर एयर में बात करें तो एयर के प्रेजेंस में आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाती है एयर से ही कंप्लीट कंबशन के लिए, वेयर एज अनसैचुरेटेड को जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती फ्रॉम द एयर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो येलो एंड स्मोकी फ्लेम के साथ बर्न करती है, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन होती है ना। ठीक, इनकम्प्लीट कंबशन में मैंने क्या बोला था? इनकम्प्लीट कंबशन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन निकलेगा, तो ये स्मोक प्रोड्यूस करेगा। ओके, और जो कलर होगा लाइट का दैट विल बी येलो। ओके, बट जब कंप्लीट कंबशन होगी, कंप्लीट कंबशन के टाइम में हीट तो चलो निकलती है, वो तो हर बार निकलती है, लाइट जो निकलेगी दैट विल बी द ब्लू। जैसे मैंने आपको बोला कि एलपीजी जो है, एलपीजी में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो एलपीजी जब हम रसोई में सिलेंडर नॉब ऑन करते हैं वो वाली अपने स्टोव की, तो आपको पता ही है उसकी येलो फ्लेम और ब्लू फ्लेम आती है और वो हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? वेयर एज जब हम किसी वुड को बर्न करते हैं या मान लो कैंडल को बर्न करते हैं, तो उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी होती हैं, इसलिए वो येलो फ्लेम के साथ बर्न करती है। अगर आप कैंडल को एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दो, फिर हो सकता है वो ब्लू के साथ बर्न होने शुरू हो जाए, ब्लू लाइट के साथ, क्योंकि तब हो सकता है उसके हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट कंबशन हो जाए। ठीक है, बट एयर की प्रेजेंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल बर्न विद द ब्लू एंड नॉन स्मोकी फ्लेम, और एयर की प्रेजेंस में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल बर्न विद सूटी एंड येलो फ्लेम। दैट्स इट, एंड दैट वाज योर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, उसके बाद अब आपके पास असाइनमेंट्स हैं आगे, असाइनमेंट मैंने इंक्लूड कर रखी है इसके बाद भी, एक ये असाइनमेंट है, एक ये और एक ये। ओके, क्लियर? और जो नेक्स्ट टॉपिक थे वो सारे के सारे कट चुके हैं, वो 2021 में नहीं है। ओके, सो बस आपका ये चैप्टर ओवर है, दैट्स इट।
ये बाकी जितनी भी असाइनमेंट बची है वो आपने अपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले कर लेनी है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।